Good evening, student. Good evening. In last Good evening, lecture, good evening. In last lecture, we had studied a small poem. Yes or no? First poem we had studied in last lecture, A Time to Believe. Yes? और उसके क्वेश्चन आंसर कुछ किए थे सॉल्व? इंग्लिश वर्कशॉप उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे क्या? नहीं नहीं याद है? डोंट रिमेम्बर? ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, वी स्टार्ट टुडे 1.1 lesson, page number 6. Standard 8. ये लेसन हम स्टार्ट करेंगे. यस. डिक एंड विटिंगटन and his cat. The name itself, one boy is there, his name was Dick Whittington, and second animal is there, his cat. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. Where he was living? In south of England. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. There was no one to take care of him. Many villagers treated him unkindly. उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? Unkindly. One day, Dick overheard मतलब क्या बेटा? अचानक बात सुनने मिलना. Overheard some say that the streets of London were paved with gold. Villagers क्या बात कर रहे थे? What they were talking? The road, path, streets of London paved with gold. उसमें gold है. He decided that he would go there at once. What Dick decided? Dick decided to go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the street. उसने क्या सोचा? He would go there, वो वहां पे जाएगा and pick up his fortune from London, from the streets.
for he thought the people might treat him more kindly. What he thought, जब उसके पास गोल्ड आ जाएगा तो लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट ही मोर काइंडली इफ ही वेर रिच. गोल्ड आ जाएगा, वो रिच हो जाएगा, तो लोग उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, काइंडली, अच्छी तरह. अभी उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द स्टोरी वी आर स्टडिंग? बोलो, नेक्स्ट पैराग्राफ जाएंगे. Yes. ओके, स्टोरी इज इन पास्ट फॉर्म. स्टोरी पास्ट फॉर्म में होती है. आपको टेंस पहचानना है. सिंपल पास्ट टेंस इज देयर, पास्ट परफेक्ट टेंस इज देयर. यस, तो आपको ध्यान देना है बेटा स्टोरी के टेंस पे. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. ही स्टार्टेड his journey. He had not gone far. चलते चलते उसने जर्नी स्टार्ट किया. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him. बेटा he had not gone, मैंने बताया ना अभी, had प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल आता है तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस. ये रूल्स याद रखो. हेड प्लस थर्ड पास्ट फॉर्म का वर्ब होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. फॉर फार, वो ज्यादा दूर नहीं गया था. फार, व्हेन अ मैन इन अ कार्ट, एक कार्ट जा रहा था लंदन की ओर, इन डायरेक्शन ऑफ लंदन, एंड asked him if he was running away from home. उसने, जो कार्टमैन था, asked Dick if he was running away from home. I have no home. उसने क्या पूछा, तू घर से भाग रहा है क्या? तो बोलता I have no home. Dick replied, I am on my way to London to find my fortune. बेटा ये रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ध्यान रखो बेटा. रिपोर्टेड स्पीच, जो भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन से टू सेकंड पर्सन एंड द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट फॉर्म, आमने सामने बात करते हैं ना बेटा, तो उसको प्रेजेंट फॉर्म में भी हो सकता है, भले वो स्टोरी हो. ये पॉइंट हमको नोट करना है. whenever there is a sentence in a stories are in reported speech, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं. ध्यान रखना है. I have no home. Dick answered, replied, I am on my way. मैं जा रहा हूं to London to find my fortune. फॉर्च्यून में क्या था, गोल्ड. किसने बताया था, पासर बाय ने, विलेजर ने. नेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ. I am going to London myself, said the carter. मैं भी लंदन जा रहा हूं. Jump up here beside me. आजा मेरे कार्ट में. Jump up inside. Jump up here beside me.
and we will journey together. We will go together to London. They arrived in London just before nightfall, evening time. They arrived in London just before the nightfall, after the sunset. Nightfall मतलब क्या? After the sunset. And the carter left Dick and made his way to an inn. जब लंदन आ गया, कार्टर ने क्या बोला? चलो भाई, लंदन आ गया है, आप उतर जाओ. तू उतर जा, बच्चा रहेगा तो तू उतर जा. ये स्मॉल बॉय है ना, इतना बड़ा भी नहीं है. चलो, तो उसने क्या कहा? द कार्टर लेफ्ट द डिक, उसको छोड़ दिया लंदन के स्ट्रीट पर. एंड मेड हिज वे टू एन इन. वो कहां पे गया? इन मीन्स होटल, धर्मशाला. बेटा इन का मतलब क्या है? आई डबल एन इन मतलब होटल है, धर्मशाला है. बोल सकते हैं पुअर डिक स्टूड अलोन. स्टैंड का पास्ट टेंस स्टूड अलोन एंड लुक अराउंड हिम इन अ डिज्नी. डिज्नी मतलब सैड फीलिंग. व्हाई ही वाज अ सैड? क्या देखा उसने? व्हाट डिड he watched there? Where was all that fine gold? जो people talk कर रहे थे, villagers talk कर रहे थे उनके, तो यहाँ तो कुछ नहीं था. समझ में आ रहा है बेटा? Where was all that fine gold? Interrogative sentence, WH type question. याद रखना है बेटा, ये ग्रामर में हमको आ सकता है, हम ग्रामर में सीखेंगे. Where was all that gold coin? Old fine gold coins नहीं. All he could see were dirty streets. How were the streets of London? Dirty. Lots of unfriendly people. गांव में तो उसको पहचानते थे कोई. Yes, वहां पे वो रहा था तो उसको वहां पे पहचानते थे, वहां पे पीपल फ्रेंडली थे. बट हियर द पीपल वेर अनफ्रेंडली. ही हैड नोवेयर टू स्लीप. ही वेर नो प्लेस टू स्लीप. सोने के लिए जगह नहीं. एंड इन द एंड ही स्लेप्ट. ही स्पेंट द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली. कहां पे उसने अपना टाइम बिताया, नाइट बिताई? द कॉर्नर ऑफ एन एली. व्हाट इज द एली? एली इज द पाथ, प्लेस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. दो बिल्डिंग के बीच में जो नैरो पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एली बोलते हैं. वेर ही हॉप ही वुड come to no harm. What he thought? यहाँ पे सोऊंगा तो मुझे कोई हार्म नहीं है. कॉर्नर पे दो बिल्डिंग के बीच में जो पाथ था, जो जगह थी, वहां पे उसने he decided to sleep there. समझ में आ रहा है? Do you want to read this much? If you are not understanding, then tell me. Yes. Can you read, Aditya? Yes. If you are not understanding anywhere, any line, any word, then tell me. Okay? मनस्वी आप भी बता सकते हो. आदित्य रीड कर रहा है, उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन टेल मी. यस, स्टार्ट बेटा, स्टार्ट. चलो. There was yes. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England.
he had no proper home, for both his parents had died, and he was unkindly treated by many of the villagers. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his torture of up in gold pieces from a street, for a true people might treat him more kindly if he were rich. So young Dick set out to talk to London. He had not gone far than a man, far than a man in a cast stopped and asked him if he was running always from home. I have no hope, Dick answered. I am my way to London to find my fortune. बस स्टॉप बेटा स्टॉप। बेटा कुछ पूछना है आपको? ये पैराग्राफ जो रीड No, किया है, बोलो। आदित्य, मनस्वी, ये पैराग्राफ में कुछ पूछना है आपको? no, डू यू sir. वांट? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट मनस्वी। I am going to London myself, said the cartier. Jump, कार्टियर नहीं बेटा, कार्टर। car, कार्टियर आई नहीं है, कार्टर। ओके, carter. Jump यस। here beside me, and we will journey together. They arrived in London just before nightfall, and the carter after Dick and made this way to him इन है, इन। to inn. हाँ, Poor Dick stood alone and looked around him in डिसमी। sir. What is हाँ the meaning? बोलो। में सैड फीलिंग। डिसमी मतलब क्या? सैड फीलिंग। ही बिकम अनहैप्पी व्हेन ही रीच्ड देयर। नो, क्या हो रहा है? हाँ, where was all that fine gold? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. He had nowhere to sleep, and in the end, he spent the night in the corner of an alley where he hoped he could come come to no harm. समझ में आया अभी? Yes. ओके, जो भी मीनिंग्स है, कहीं कहीं आपको नहीं समझा है, आपको लिख लेना है, मैं एक्सप्लेनेशन में बोलता हूँ। यस, चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वॉक अप कोल्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वॉक अप कोल्ड। सर्दी खांसी बोलते हैं ना, कोल्ड, मिजरेबल, पैथेटिक कंडीशन। मिजरेबल मतलब क्या बेटा? पैथेटिक कंडीशन, खराब परिस्थिति। एंड वेरी हंग्री, he wandered around begging for food। यहां से वहां भटकना, wandered। why he was wandered around begging for food? वो हंग्री था, उसको खाना चाहिए था। but again and again people shouted at him। क्या बोल रहे थे वहां के लोग? उसे शाउटेड कर रहे थे, गो अवे यू लेजी फेलो। चला जा यहां से, गो अवे। आलसी, लेजी, बी ऑफ विथ यू, गो अवे फ्रॉम हियर। एंड aimed angry blows at his head। angry blows at his head।
गुस्सा, एंग्री ब्लो, सब लोग बोल रहे थे ना चला जाए यहां से, तो उसको कैसे फीलिंग हुआ? एंग्री ब्लोस एट हिज हेड, सब लोग उसको मार रहे थे, सच में नहीं मार रहे थे, उसको बोल रहे थे ना। एट लास्ट ही कोलैप्स इन द स्ट्रीट। बेटा हमको याद रखना है, जब भी बेटा पास्ट टेंस में ईडी रहता है ना, फिर भी हमको बोलना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। We have to understand only that this sentence is in past form. समझ में आ रहा है? ईडी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो क्या हुआ बेटा? At last he collapsed in the street. वो गिर गया, स्ट्रीट पे ही गिर गया, खाना नहीं खाया था। And lay there, वहां पे ही पड़ा रहा। Too weak to look further for food. अभी उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो आगे फूड का सर्च कर सके, किसी को बोल सके, फूड का सर्च कर सके, इतनी उसमें शक्ति नहीं थी। ही बिकम टू वीक टू स्टैंड। समझ में आ रहा है? वो इतना अशक्त हो गया था कि उसे वो खड़ा भी नहीं रह सकता था, वो गिर गया है। नेक्स्ट, बाय चांस Dick had fallen in front of a house belonging to the rich merchant called Mr. Fritz Warren. Fritz Warren. By chance क्या हुआ? वो Dick had fallen in front of a house. एक जो घर था जो मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन का था, वो रिच मर्चेंट था। वो हाउस किसका था? रिच मर्चेंट। वहां पे वो आ गया। उसका नाम क्या है? पर्सन का नाम क्या था बेटा? मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। उसका जो कुक था, या थी, आएगा बाद में हम देखेंगे, कुक थी, यहाँ कुछ बोला नहीं है, कुक। ही मस्ट बी, एट दिस टाइम वी थिंक द कुक मस्ट बी ही, बाद में देखेंगे क्या होगा। समझ में आ रहा है? देखो, कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे, उसको भगा रही थी। गो आउट फ्रॉम हियर बोलते ना। व्हेन मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन returned home from inspecting his sheep, कहां से आ रहे थे वो? अपने शीप का इंस्पेक्शन करके आ रहे थे, अपने शीप का इंस्पेक्शन करके आ रहे थे। He stopped and said to Dick. He stopped and said to Dick. क्या बताया? मैं कई बार आपको सेंटेंस लिखने को बोलूंगा ना, तभी उसमें ईडी बोलूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट टेंस में लिखना। पढ़ना है तभी ईडी नहीं बोलना है। मैं आपको बोलूंगा कि ये सेंटेंस लिखो, he stopped and said to Dick, ये सेंटेंस। तो आप, तो मैं नहीं बोलूंगा तो आप लिखेंगे नहीं ना। स्टूडेंट क्या करते हैं, हम नहीं बोलते तो लिखते भी नहीं है ईडी, तो तभी हम बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? आप बोलोगे कभी कभी आप ईडी बोलते हो, कभी कभी नहीं बोलते हो। जब भी हम तुमको लिखने को बोलेंगे बेटा ये लेक्चर्स में, तभी मैं ईडी नहीं बोलूंगा तो आप लिखेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है? पर आपको ध्यान देना है, क्या रूल्स क्या है। Why don't you work if you need a food? Why need, why want you need, why don't you work if you need a food? तुझे फूड चाहिए तो तू कुछ काम क्यों नहीं करता? Who said? To whom? Mr. Fritz Warren said to Dick.
देखेंगे आई वुड वर्क, मैं काम करूंगा, आई वुड वर्क, सेड डिक, बट आई नो nobody who will give me anything to do, but I know nobody who will give me anything to do, मुझे पता है मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है, मैं काम करना चाहता हूं, आई वुड वर्क, मैं काम करूंगा, बट आई नो, मुझे पता है nobody who will give me anything to do, मुझे कुछ काम देने वाले नहीं है। रीड करोगे आदित्य? एक पैराग्राफ तू कर, एक मनस्वी करेगी। हाँ यस, बोलो बेटा। Next morning, Dick woke up cold, miserable, and very hungry. मिजरेबल बेटा, मिजरेबल। Miserable and very hungry. He went वंडर, वंडर around मतलब क्या बेटा? वंडर मतलब क्या? गो फ्रॉम हियर एंड देयर, भटकना। wander around being for food. बेगिंग, बेगिंग बेटा ध्यान से पढ़ो, कहाँ जाना है आपको? बेगिंग, कहीं जाना है? हाँ रीड करो। Begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you crazy fellow, be off with you." And those at his head. At last he collapsed in the street and stayed there two weeks to लुक फर्दर फॉर फूड, बस लुक फर्दर फॉर फूड, look further for food. हाँ, By okay. chance, बस बस बेटा बस। इस ये पैराग्राफ में कुछ पूछना है बेटा आपको? बेटा स्टोरी कैसे जा रही है, समझ में आ रहा है? आर यू बोथ अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कोलैप्स मतलब फॉल डाउन, गिर जाना। यस, और कुछ? और कोई वर्ड से? मनस्वी पढ़े क्या? पढ़ मनस्वी। यस सर। हाँ उसमें कुछ पूछना है बेटा आगे वाले पैराग्राफ में तुझे? नहीं सर। ओके रीड इट नेक्स्ट। By chance, Dick and fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fritz, Fritz Warren. Fritz Warren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fritz Warren returned home from inspecting. उसका नाउन इंस्पेक्शन, नाउन क्या हो जाएगा? ये वर्ब है, इंस्पेक्टिंग वर्ब है, तो उसका नाउन क्या हो जाएगा बेटा? इंस्पेक्शन। समझ में आ रहा है? सर रीड। इंस्पेक्शन मीनिंग? इंस्पेक्शन मतलब क्या? किसको हम अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं तो इंस्पेक्शन। स्कूल में इंस्पेक्शन होता है क्या नहीं होता है? एजुकेशनल इंस्पेक्टर आते हैं, आपको क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं वो देखते हैं और नोट डाउन करके जाते हैं मैसेज लिखकर। यस सर। अभी समझ में आया? यस सर। ओके, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंस्पेक्टिंग शिप, वो मर्चेंट थे, शिप में गुड्स जो बेचने की वस्तु होती है ना बेटा उसको गुड्स बोलते हैं, वो रख दिए, शिप चली गई, तो ये सब पैकिंग वगैरह होता है ना, तो उसको इंस्पेक्शन करने का काम ये फ्रिट्ज वॉरेन करते थे। समझ में आया अभी?
इंस्पेक्शन मीनिंग यहाँ पे क्या है? Yes, sir. ओके, His ships, he stopped and asked to Dick, "Why you don't you work if you need food?" "I would work," said Dick, "but I know nobody who will give me anything to do." यस। बेटा कुछ पूछना है तो बोलो, ये लास्ट दो स्मॉल पैराग्राफ में, और वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। टेक 1 or 2 minutes। यस, कैन वी स्टार्ट विथ नेक्स्ट पेज? Yes, ओके आदित्य, कैन वी गो? बोलो। Yes, sir. ठीक है, 1 minute। Now what happened next? Take him into the kitchen। वो जो कुक थी, अब तक तो हमें बाद में पता चलेगा, मैंने बताया ना। टेक हिम इनटू द किचन। मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन ऑर्डर द कुक। उसने कुक को क्या बताया? इसको किचन में लेकर जा। फीड हिम फर्स्ट, उसको खाना दे। एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, उसके लिए कुछ काम दे। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड लिविंग। अभी उसको लंदन में घर मिल गया। लिविंग, he had small corner of the attic to sleep in, and job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Where did he get the place to sleep? कहाँ पे उसे जगह मिली? दी गई। स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक। बेटा एटिक पता है? एटिक का मीनिंग पता है क्या नहीं पता है? देखा है आपने एटिक? no, ओके, जो रूम्स होते हैं बेटा चॉल सिस्टम में, तो आधा जो मालिया बोलते हैं बेटा, बनाया हुआ रहता है किचन के ऊपर, छोटा सा। कहीं पे रूम में भी होता है, कहीं पे छोटा मालिया बोलते हैं उसको, उसको एटिक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जहाँ पे हम स्टैंड नहीं कर सकते हैं, खड़े नहीं रह सकते हैं, खाली बैठ सकते हैं, बैठ के कुछ काम कर सकते हैं। वी कैन स्लीप देयर, खाली बैठ सकते हैं। तो वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं बेटा? एटिक। जहाँ पे हम हमारा बहुत सारा जो अनवांटेड थिंग्स रहेगी वो सब रख देते हैं। भंगार बोलते हैं ना बेटा, भंगार, वो सब रखते हैं। चलो, अभी पता चला बेटा एटिक आपने देखा है अभी? Yes. ये मैंने जो एटिक का जो डेफिनेशन बोला मेरे लैंग्वेज में आपको बताया छोटा थोड़ा बहुत। अभी आपने वो देखा है एटिक कहीं पे?
कोई किसी रूम में, चॉल सिस्टम में? यस और नो? याद आ रहा है कुछ? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ेगी। उसका जॉब क्या था बेटा? क्या काम दिया गया उसे, डिक को? टू हेल्प द कुक विद ऑल द पॉट्स एंड पान्स इन द किचन। बर्तन मांजना, बर्तन रखना, बहुत सारा काम होता है, तो ये शॉर्ट में बताया उसको। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। अभी उसकी लाइफ तो अच्छी हो गई बेटा, रास्ते पर पड़ा था कितने दिन तक, अभी उसको लाइफ कैसी हो गई? अच्छी हो गई। बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस। यहाँ पे फ्रिट्ज वॉरेन के घर पे, हाउस पे कौन सी डिफिकल्टीज थी? बेटा क्वेश्चन आ सकता है आपको। आपको स्टोरी पता होगी ना, तो यू कैन फाइंड एंड राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड। बट स्टोरी ही नहीं पता है तो आप नहीं लिख सकते हो। बेटा थिंकिंग इज मस्ट। कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंस एंड राइट द आंसर। आपको स्टोरी पता होगी तो आप अपने सेंटेंस बना सकते हो और लिख सकते हो। यस। नेक्स्ट, कौन सी डिफिकल्टीज थी? ही हैज टू फेस। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज टू यूज होना है, और पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड। चलो, द फर्स्ट वाज दैट द attic he slept in was overrun by the rats and mice. वो एटिक था प्लेस, वहां पे बहुत सारे चूहे थे, rats and mice. At night they scrambled over all over him. बोलो scrambled, run here and there. वो जो माइस रेड्स थे वो भाग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे एटिक में। scrambled, scrambled all over him and kept him awake. और उसको जागना पड़ता था। kept him awake, वो जागता था। After a time he solved this problem by saving a few pennies. He was paid. उसने जो काम किया उसके लिए जो फ्रिट्ज वॉरेन ने उसको थोड़े पैसे दिए, खाना तो मिल जाता था, उसके लिए फूड के लिए उसको पैसे नहीं स्पेंड करने पड़ते थे, तो उसको जो पैसे दिए उसमें से उसने एक केट परचेज की। ही परचेज वन केट। समझ में आया? कहां पे थे बेटा? ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग फ्यू पेनीज। पेनीज मतलब क्या? अमाउंट। वहां के जो रुपीज होते हैं ना, उसको पेनीज बोलते हैं। ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ केट। उसने खुद के लिए कैट खरीदी। इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेज अवे ऑल द रैट्स एंड माइस। थोड़े ही टाइम में जो कैट थी उसने सब जो रेट्स थे, माइस थे, उसका खात्मा बोल दिया। बोलते हैं ना बेटा, खात्मा बोलना मतलब क्या? उसको केट को देखकर चूहे चले गए। कितने चूहे को केट खा गई? यस, द केट चेज अवे all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. अभी वो आराम से सो सकता है। Now the Dick was able to sleep peacefully.
द डिफिकल्टी विच वॉज नॉट सो इजी टू ओवरकम। अभी चलो एक डिफिकल्टी तो सॉल्व हो गई, सेकेंड डिफिकल्टी अभी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और वो डिफिकल्टी कौन सी थी, समझ में आ रहा है? द अदर डिफिकल्टी विच वॉज नॉट सो इजी टू ओवरकम, ओवरकम मतलब क्या, रिमूव, लिख दो बेटा लिख दो, ओवरकम मतलब रिमूव, दूर करना, ये डिफिकल्टी दूर करना पॉसिबल नहीं था। पहले डिफिकल्टी कौन सी है वो सुनेंगे। Was the cook's bad temper? Was the cook's bad temper? This was a second difficulty. जो कुक थी, देखो यहाँ पे पता चलता है कुक थी या कुक था, अब तक हमें नहीं पता था, समझ में आ रहा है? Was the cook's bad temper? उसका जो स्वभाव था बेटा, स्वभाव, टेम्पर, वो बैड था, अच्छा नहीं था। अपोजिट गुड टेम्पर, अपोजिट वर्ड याद रखेंगे। शी शाउटेड एंड स्क्रीम ऑल डे, शी शाउटेड एंड स्क्रीम ऑल डे, पूरा दिन वो चिल्लाते रहती थी, शाउट करती थी, स्क्रीम चिल्लाना, एंड वुड स्क्रोल्ड डिक एंड हिट हिम विद द वुडन स्पून, उसको वुडन स्पून से मारती भी थी। बेटा डिफिकल्टी है, हमको यहाँ हंसी आ रही है अभी, क्या ऐसा भी हुआ रहेगा? बट द कंडीशन वॉज मिजरेबल। डिक एंड हिट हिम विद द वुडन स्पून, वुडन स्पून से मारती थी। Even when he was working as hard as he could, डिक तो काम करता था बेटा, as hard as he could, पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबल था अच्छा काम करना, हार्ड वर्क करना, वो काम डिक करता था। समझ में आ रहा है आपको? बट कुक स्पून से मारती थी। नेक्स्ट, one night Dick decided he could stand it no more. अभी उसने क्या सोचा, डिसाइडेड he could stand it no more, अभी मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत परेशानी है ना। उसने सोचा he could stand it no more. Early next morning before the cook was up, कुक जागती थी उसके पहले क्या किया उसने, डिक ने क्या किया, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere, वहां से वो निकल गया। he set out with his cat to seek his fortune elsewhere, अपने फॉर्च्यून को ढूंढने के लिए वो दूसरी जगह गया। the two of them walk as far as Holloway, धीरे धीरे बोलते हैं ना, two of them walk as far as Holloway on their way out of London, चल रहे हैं धीरे धीरे। then Dick sat down on a stone to rest, डिक आराम करने बैठ गया, स्टोन एक पत्थर पर। it was the 1st of November, 1st November आफ्टर दिवाली और बिफोर दिवाली, है ना। हमको पता नहीं है अभी, हम बता सकते बेटा अप्रोक्सीमेटली दिवाली अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर एंड और दिवाली फर्स्ट वीक होती है, तो हम बोल सकते हैं all saints day the church bell were ringing, जैसे हमारे मंदिर में बेल बजता है, वहां चर्च रहते हैं, चर्च में बेल बज रही थी। as Dick sat and listened it seemed
they were ringing out a message for him. एक मैसेज उसके लिए, उसको लगा ये चर्च में जो बेल बज रही है उसके लिए, उसमें से कुछ मैसेज उसको सुनाई दिया. टर्न अगेन, विटिंगटन, विटिंगटन. THOU, था, उसको यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यू वर्दी सिटीजन. यू, इसका मीनिंग क्या है बेटा? ये ओल्ड इंग्लिश है. थाउ नहीं बोलना है उसको, थाउ नहीं, हम यू ही बोलेंगे. यू वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. तू तो लंदन का मेयर है. तू डिक विटिंगटन है, वर्दी सिटीजन है. बोलते हैं ना बेटा, कीमती, ये क्वालिटीज है सिटीजन की. वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. ये सुनाई दिया उसको. कहां से सुनाई दिया बेटा? चर्च की जो बेल रिंग हो रही थी उसमें उसको सुनाई दिया. हमको ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता है बेटा, ये स्टोरी है. बोलो, सुनाई देता है हमको ऐसे कुछ? टेंपल की बेल रिंग होती है तभी हमको ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता है बेटा. बट इट इज स्टोरी. हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, हम रीड करते हैं. समझ में आ रहा है आपको? यस. आगे बढ़ेंगे बेटा, बाद में मैं रीड करने का टाइम दूंगा आपको. लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, I should like to be Lord Mayor and ride in fine coach. क्या मैं मेयर बन सकता हूं? देखो, I should like to be Lord Mayor. मेयर मतलब फर्स्ट पर्सन. हम बोलते हैं ना बेटा, राष्ट्रपति बोलते हैं. राष्ट्रपति नाम सुना है बेटा? Yes. हाँ, राष्ट्रपति सुना है. ओके. जैसे फर्स्ट पर्सन होता है ना, तो वहां का फर्स्ट पर्सन उसको मेयर बोलते हैं. हमारे मुंबई के भी मेयर होते हैं. महानगर पालिका है तो मेयर होगा. क्या बोलते हैं इसे? लॉर्ड मेयर राइड इन अ फाइन कोच. आई कैन पुट अप विथ few scoldings from the cook. I can, मैं मेयर बन गया तो क्या होगा? I can put up with, I can put up with मतलब क्या? टॉलरेट. पहले उसको सब टॉलरेट करना पड़ता था ना बेटा, सहन करना. टॉलरेट का मीनिंग क्या हुआ बेटा? सहन करना, चला लेना. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. कुक को टॉलरेट करना ही उसके पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था, उसको करना पड़ा. पर अभी नहीं है बेटा. देखो, I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in the store for me. खाली वो सोच रहा है ये क्या, उसको टॉलरेट करना पड़ा. So Dick and his cat retrace their steps to Mr. Fitzwarren house. क्या होगा देखो? So Dick and his cat retrace, वापस गए वहां पे, their steps to Mr. Fitzwarren house. वहां पे गए. Luckily they were able to slip back before they had been missed. वापस वहां पे गए हैं. They were able to slip back, enter. Slip back मतलब enter before they had been missed. अभी भी किसको पता नहीं है बेटा, उन लोग बाहर जाके आ गए हैं. Now, last paragraph of this page. Now, Mr.
Fritz Warren used to send ships far across the sea to trade with other countries. पहले भी बताया है बेटा, इंस्पेक्शन वाला वर्ड आया था तभी, वो शिप का इंस्पेक्शन करके आया था that time. फ्रिट्ज वॉरेन क्या काम करते थे? यूज्ड टू सेंड शिप्स फॉर अक्रॉस द सी, फॉरेन कंट्रीज, अक्रॉस द सी, फॉरेन कंट्रीज टू ट्रेड विथ अदर, आया ना, ट्रेड विथ अदर कंट्रीज. he would load a ship with goods. गुड्स मतलब क्या बेटा? बोलो. गुड्स मतलब जो परचेज सेल हम करने के लिए थिंग्स खरीदते उसको गुड्स बोलते हैं. हमारे पर्सनल यूज के बारे में नहीं हम वो परचेज करते हैं, बट वी आर परचेसिंग फॉर सेलिंग अगेन, उसको गुड्स बोलते हैं. फॉर द कैप्टन द शिप्स क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेस. क्रू मतलब क्या? शिप में काम करने वाले लोगों को क्रू बोलते हैं, CREW. To sell in far away place, and then they would bring back goods that could be sold at home. फॉरेन कंट्री में जाते हैं अपना गुड्स बेचने के लिए, और फॉरेन कंट्री में जो मिलेगा कॉस्टली नहीं लाते वो, वहां से फॉरेन कंट्री से कॉस्टली गुड्स नहीं लाते. जो भी उसको वहां सस्ता मिला वो यहाँ लाते हैं होम कंट्री में, और होम कंट्री में ज्यादा पैसा लेके बेचते हैं. तो ये उनका क्या हो गया बेटा? बिजनेस हो गया. हमारे पास जो गुड्स थे वो दूसरे कंट्री में ज्यादा में बेचेंगे, वहां से कोई सस्ता थिंग्स मिला तो वो उन लोग परचेस करके होम कंट्री में आकर बेचते. दिस इज द बिजनेस. बेटा समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? चलो रीड करेंगे. आदित्य फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड रीड करो. चलो, और नहीं आएगा तो मुझे बताओ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बोलो. यस सर तो डिश है ना. हाँ. यहाँ से बेटा, टेक हिम इनटू द किचन, फर्स्ट लाइन रीड करो. स्टार्ट. सर वेयर. यहाँ पे ये पेज नहीं है बेटा, मैंने पेज रखा है ना. टेक हिम इनटू द किचन, फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 7. Have you got the line? Yes sir. Start then. Take him into the kitchen. Mr. Fitzwarren. What is this? Fritz Warren Fitzwarren ordered the cook for him. So Dick was given a home and a living. He had a small corner of a attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. This should have been much better than before, but he still has two difficulties to face. to face. Okay, आगे. The first was the attic he slept in was overrun by rat and mice. At night, they scrambled all over him and kept him awake. After a time, he solved his problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In one time at all, the cat chased away all the rat and mice, and Dick was able to sleep peacefully. Stop.
इसमें कुछ पूछना है आपको? टेल मी। आपने रीड किया है तो कुछ। What is the meaning of scampered? स्क्रैम्पर्ड मतलब, स्कैम्पर मतलब क्या? रन हियर एंड देयर। कौन भाग रहा था? चूहे लोग, माइस, रेट्स। वो एटिक जो प्लेस था वहां पे भागते थे। सो ही वॉज अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली। डिक वॉज अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली। नो, अभी समझ में आया? Yes, sir. ओके। मनस्वी, कुछ बोलना है बेटा ये पैराग्राफ में जो आदित्य ने रीड किया है? No, sir. हाँ, देन स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट पैराग्राफ। Sir, from the other different, हाँ, यस 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 बेटा। the other difficulties which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. One एज हार्ड एज, क्या बोलना है बेटा? हैज नहीं बोलना है, एज हार्ड एज ही कुड। यस, as hard as he could. ओके। One night, Dick decided he could स्टैंड इट नो stand मोर। no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fountain. फॉर्च्यून बेटा, फॉर्च्यून संपत्ति। फॉर्च्यून मतलब क्या? संपत्ति। फॉर्च्यून बोलो, ओके। For fortune elsewhere, the two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on the stone to rest. It was the 1st of November, All Saint Day, and the church bells बेल्स, बेली नहीं, बेल्स। were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. क्या Lord, मैसेज सुनाई दिया? क्या मैसेज? हाँ बोलो। Lord Mayor of London, said Dick, I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scolding from the cook if that is what is in store for me. So Dick and his cat रिट्रेस, रिट्रेस। retraced their step to Mr. फ्रिट्ज वॉरेन, फ्रिट्ज वॉरेन। Fritz Warren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. Now, बस बस, Mr. स्टॉप करो बेटा, स्टॉप। ये इसमें से आपको कुछ बोलना है बेटा, कुछ पूछना है तो बोलो। कहाँ से पढ़े थे बेटा? वन नाइट से पढ़े थे ना आपने? अदर डिफिकल्टीज, ओके। अदर डिफिकल्टीज से लेकर यहाँ तक आपको कुछ बोलना है? No, आदित्य को कुछ पूछना है? sir. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो आदित्य। Lord, हाँ, लास्ट। नाउ। Lord Mayor, हाँ, I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few
सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो स्क्रॉलिंग चलेगा. If what it नहीं आवाज आ रही है. हेलो. नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रहा है आपका आदित्य. सर आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही. आदित्य की आवाज नहीं आ रही. रीड कर रहे वो. हेलो हाँ, आदित्य की आवाज नहीं आ रही है. सर मैं ही बोल रहा हूँ. हाँ आदित्य, अभी आई है आवाज आपकी. हाँ बोलो. Lord Mayor of London said, Dick, I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scolding from a cook if what is in store for me. So Dick and his cat retract their step to Mr. Fitwarren house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. No, now Mr. Fitwarren used to send ship for across फार the एक्रोस. 4 एक्रोस नहीं है बेटा, फार एक्रोस. far across the sea to trade with other countries. He would laid load to ship with good for the captain and ship crave to sell in far away place, and then they would bring back good and could be sold at home. समझ में आया. ये 2 लास्ट पैराग्राफ, उसमें कोई वर्ड्स रह गया है, कुछ सेंटेंस नहीं समझे है तो बोलो. तो मैं No. और एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ. कुछ वर्ड्स के लिए रह गया. मैंने गुड्स के लिए एग्जाम्पल दिया था. गुड्स किसे बोलते हैं? यस, बेचने के लिए जो चीज हम खरीदते हैं उसको गुड्स बोलते हैं. और हमारे खुद के लिए आर्टिकल या और कोई चीज हो गई. यस. सो read the lesson at home. We stop here and continue this lesson in next lecture. Yes, we stop here. Lecture ends.